Happy New Year to everyone across the world. It's really a wonderful year ahead for all of us if we work hard on ourselves and for the people who are around us. It could be our family members, it could be our friends, it could be strangers. We all should work together and live in peace and harmony than creating chaos or hatred in our communities. Let's live with love, peace, and joy. And today is a special day because we are being joined by a special celebrity guest who's agreed to share her time with us and empower us in the right way. She belongs to the field of psychology. She loves to connect with people based on her educational pursuits. That is, she has entered into the field of psychology, wanting to contribute to the society. She wants people to understand the importance of mental health, irrespective of gender. We all have to focus on our mental health. Join us, friends, to welcome our celebrity guest. She is none other than Simran Datta, joining us all the way from the lovely city Pathankot, Punjab, India. It's time to welcome our celebrity guest, none other than Simran ji. Hello Simran ji, बहुत बहुत धन्यवाद, namaste and welcome to the session. You give me the opportunity to share my views. Thank you. Thank you so much, Simran ma'am. Thank you very much. Thank you for being polite, humble and kind for accepting the invitation. You come across as a very nice, polite person. अभी मैम हम अभी आगे जाके आपका प्रोफाइल पढ़ के उसके बाद में हम सेशन स्टार्ट करेंगे. Yes, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. So dear friends, as I do this always on the International Fab Talks, sharing the profiles of all our celebrity guests at the start itself. And today it is Simran Datta. She is here with us. As I earlier mentioned, she belongs to the field of psychology. She would love to do more in the field of psychology for people across the world. So let's get to know more about her journey as to how it began. As I said, she belongs to Pathankot. Basically, she is from Nurpur. She's married in Pathankot and she's living a very happy life. She had her early education in DAV Public School in Nurpur. And she went on to complete her college education. To put it right, she graduated from Shivalik Institute in Shimla. After that, she completed a post-graduation from Amritsar. She loves to study and focus on education, good health, peace of mind for herself and for others. Currently, she is pursuing her master's in psychology. Professionally, she has been working for an institute called as Kamakshi Institute in Nurpur and has acquired teaching skills and experience. If I'm not mistaken, let me put this right. In her free time, she loves to play badminton. Badminton is one of the best ways to keep your body fit, and she loves and enjoys playing badminton. She loves listening to music. I guess she could sing as well. And of course, exploring new adventures. Now, what are the new adventures? Let us get to know about that. Simran ma'am is passionate about creativity. That's really nice. We all should be creative, dear friends. She focuses on self-care and helping others around her. If you only concentrate on yourself and forget about others, there is a problem. If you concentrate only on others and forget about yourself, that's another big problem. So the best way to balance life is, to focus on yourself and to focus on the people around you in the right way. तो चलिए आज जानेंगे सिमरन जी के बारे में, क्यों इस फील्ड में उतर के आए हैं, साइकोलॉजी क्यों चुने हैं, मानसिक बीमारी के बारे में जानेंगे. पहले ये बताइए आप क्यों इस फील्ड में उतर के आए हैं. हेलो मैम, गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मेरे बारे में सब कुछ बताया. तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्टली लेट मी स्टार्ट a little bit about myself, little bit. Like during my education, I studied a subject called psychiatry in my second semester. Then I found it's quite interesting, and it became my favorite subject. I'll enjoy learning about so much. Then I decided to pursue my post graduation on specialty in psychiatric field. Then I also take some more explore when I go to teaching experience. जब मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में साइकेट्रिक पढ़ा, साइकेट्रिक के बारे में स्टूडेंट्स को बताया, तब मुझे इस चीज़ में मुझे लगा कि मुझे ह्यूमन बिहेवियर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है. तो उसके बाद मैंने अब साइकोलॉजी में एमए करने का डिसाइड किया. देन बस धीरे-धीरे करके इस चीज़ में हम आ गए और इस चीज़ को हमने अपना कहीं न कहीं एक इंटरेस्टिंग ज़ोन के साथ आगे बढ़े. और इसके बारे में मुझे लगता है अगर हम इसी तरह से अगर ह्यूमन बिहेवियर किसी की डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, स्ट्रेस, तो उसके रिलेटेड अगर हम किसी को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें तो एक ये
खुद में एक अच्छी बात है और साथ में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी इससे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जी मैम। अभी हम ये जानना चाहेंगे चाहेंगे सिमरन जी, जब आप साइकोलॉजी चुने या साइकेट्रिक फील्ड में आए हैं, तो आपके यस मैम। परिवार लोग क्या बोल रहे थे? क्या आपको इजीली परमिशन मिल गया, अच्छा हाँ चलो कर लो, आपके मन की बात पूरा कर लो, या आपको रोके नहीं ये फील्ड नहीं चाहिए, औरत इस फील्ड में नहीं जाना है, ऐसा कुछ आपको रोक टोक कुछ मिला है? देखिए, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज से बोलें, तो वो तो यही बोलेगा, यार साइकियाट्रिक ली है मतलब दिमागी रोग से मतलब कल को तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर वही बात आ जाती है अवेयरनेस की, अगर आपकी फैमिली इस चीज़ के बारे में अवेयर है, अगर आपने उन्हें इन चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड है, तो दे विल डेफिनिटली सपोर्ट मी और आगे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट ही किया इस चीज़ में आगे कुछ करने के लिए। अगर हमारे कुछ करने से इस सोसाइटी का कुछ अच्छा होता है, तो वो कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। दे ऑलवेज़ यूज्ड टू सपोर्ट मी। तो आप बड़े खुशनसीब हैं मैम, क्योंकि आपके घर में आपको सपोर्ट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अब तक। यस मैम। थोड़े लोगों के घरों में सपोर्ट नहीं करते हैं, वो यस थोड़े मैम। रूल्स रूल्स तोड़ के उन लोग आगे आके वो फील्ड में उतर के आ जाते हैं थोड़े। यस मैम। अभी हम एक बड़े विषय पर बात करेंगे मैम। ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखे हैं, मर्द और औरत के बीच में एक फर्क है। यस औरत दुख में रो लेती है, या मैम। अपने किसी ना किसी एक दोस्त या सहेली या किसी भी एक फ्रेंड को शेयर कर देती है, जो भी है अपनी, यस मैम। ज्यादा नहीं सहती, बोल देती है, रो लेती है, बोल देती है। या चिल्लाएगी, वो कुछ कर लेगी, वो शी विल एक्सप्रेस इट आउट, एक्सप्रेस कर यस लेगी मैम। वो। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा देखे हैं, मर्द लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, यस मैम। बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, या तो नशे के हालत में, या नशे में वो डूब जाते हैं, या ड्रग्स में डूब हुँ। जाते हैं, या कुछ अलग रास्ता अपनाते हैं। लेकिन वो आगे आके अपना स्ट्रेस और ये नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो फिलहाल में अभी हमने देखा अतुल जी आत्महत्या कर चुके हैं, और यस जस्ट टू मैम। थ्री डेज बैक अभी एक बेकरी ओनर जो पुनीत जी है उनका, वो भी गुजर चुके हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, मर्द लोग क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हैं, या सही वक्त पर एक्सप्रेस करना, यस मैम। बहुत मुश्किलों के बाद में तब आके एक्सप्रेस करना, बहुत देर हो चुका होगा तब। उससे पहले जब आप पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर काउंसलर से मिले, उनसे बात करें, तो ये अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब आप काउंसलिंग लेते हैं या देखते हैं आसपास, तो औरत सामने आती है या मर्द सामने आते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, या किसी काउंसलर से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना, या साइकियाट्रिस्ट से मिलना, आपका अनुभव क्या है जी? देखिए मैम, मेरा इस मामले में ये कहना है कि सबसे पहले ये केसेस क्यों आ रहे हैं, तो हमें इसका कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करें, क्या कारण है इसके पीछे कि मर्द सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या प्रेशर आ रहा है उन्हें, जिसकी वजह से वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। वुमेन्स तो बहुत ईज़िली, जैसे हम अपना बीइंग अ गर्ल, हम खुद अपनी बात करें, तो हम अपनी चीज़ें बहुत ईज़िली शेयर कर लेती हैं, अपनी किसी फ्रेंड से, अपनी मदर से, तो हम बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपनी थॉट्स वेंटिलेट करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है मर्द की, एक मैन को देखा जाए तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका एक मेजर कॉज़ है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। वाह। हमारी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि मर्द जो है, वो कैसे उसने बिहेव करना है, कैसे थिंक करना है, कैसे उसने फील करना है। तो सोसाइटी ये चीज़ एक्सपेक्ट करती है, वन ऑफ द मेजर कॉज़। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ अज़्यूम कर ली है कि हाँ भई, ये मैन है तो इसे अपने इमोशंस शो नहीं करने हैं। अगर वो अपने इमोशंस शो करता है, तो कहीं न कहीं इट मे लीड्स टू, उसे ये चीज़ कहीं न कहीं बॉदर करेगी कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो। तो वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस अंदर ही अंदर सप्रेस करेगा। वो चीज़ कब एक एक मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल हेल्थ इश्यू में बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट मे लीड्स टू एंग्ज़ायटी, देन इट विल लीड, धीरे-धीरे कब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होगी, इस चीज़ में पता ही नहीं चलेगा। एक बोलते हैं ना, जब आप डिप्रेस हो, उस टाइम आप अपनी चीज़ें अगर किसी से शेयर करो, तो वो चीज़ कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन उस चीज़ को कहीं न कहीं आपको खुद से एक रिलीफ़ मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। कि हाँ, कोई है हमारे पास कि हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन
जो मेंस होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें आता है कि हम बहुत बोल्ड हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये चीज भी हो सकती है कहीं ना कहीं। और अगर उनके मन में ये चीज भी आ सकती है, अगर हमने ये चीज इनके साथ शेयर की तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब हम ये चीज कहीं ना कहीं अपने माइंड से निकाल देंगे तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज में भी चेंज आ सके। जी सिमरन मैम, आपने बहुत सही तरीके से शेयर किया है आपने मन यस की मैम। बात। आपने ये बताया शेयर करने की बात। अगर यस। कोई पीड़ा चल रही हो मन में, किसी से शेयर करे तो कम हो जाएगा, किसी के साथ यस। बांटे तो कम हो जाएगा। लेकिन जब शेयर करते हैं या बांटते हैं अपना दुख किसी के साथ, तो सही लोगों के साथ ही बांटना है। बिल्कुल अगर बिल्कुल बस बिल्कुल। ऐसे वैसे किसी के साथ शेयर कर दिए, वो आपका फायदा उठाएंगे, आपका बिल्कुल मजाक उड़ाएंगे, आपके पीठ के पीछे बात करेंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट आगे आ चुके हैं हमारे भारत में और काम कर रहे हैं। तो यस ये मैम। निवेदन है सभी लोगों से कि आप सही लोगों के साथ जाकर अपना अपनी बातें शेयर मानसिक पीड़ा करें। शेयर कीजिए, बिल्कुल अपना इमोशंस शेयर बिल्कुल कीजिए, जो भी शेयर आप कीजिए। यस। गुजर रहे हैं। एम आई राइट? तो बस यस किसी मैम। और को भरोसा ना करके, यू मीट द राइट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड कनेक्ट विद देम। एम आई राइट यस मैम? मैम। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। राइट। जी सबसे पहले इसमें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बहुत रोल प्ले करती है। इमोशनल कन्फ्लिक्ट, हमेशा मेल को ये बोला जाता है कि आपको अपने इमोशंस सप्रेस करने हैं। बस जहाँ पे ये सप्रेस करने की बात आ जाती है वहां पे क्या होता है, हम अंदर ही अंदर कब इस चीज में कोई मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है ये चीज हमें पता नहीं चलती। जी जी एंड इट में लीड्स टू, सबसे एक मेजर पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, मेंटल स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब हमें क्या होता है कि हमें एक मेल के मन में मोस्टली ये चीज आएगी कि अगर मैं किसी साइकेट्रिक से कंसल्ट करूंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए शेमफुल बात है, कि उससे कहीं वो मुझे जज ना करे इस चीज को लेकर। तो ये चीजें कम करने के लिए सबसे पहले हमें लोगों को अवेयर करवाना है इसके बारे में। जैसे हमें रेज करनी है अवेयरनेस और रिड्यूस करना है हमें स्टिग्मा। इट्स रियली नाइस। मोर ऑफ अवेयरनेस एंड लेस ऑफ स्टिग्मा। यस। अगर मैम, सिमरन मैम, हम ये बताना चाहेंगे, अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे तो भी बात करेंगे, बुरा बिल्कुल। करेंगे तो भी बात करेंगे, तो भी बात तो भी करेंगे। बुराई करते हैं। तो तो भी अच्छा करेंगे। करो, बुराई करते, बुरा करो तो भी बुराई हमारी हो जाती है। हाँ तो बिल्कुल। इसीलिए आप बिना डर कर, निडर होकर आप सही काउंसलर से या साइकियाट्रिस्ट या बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट या सही इंसान के साथ आप बांटोगे अपना दुख, तो आपका दुख कम हो जाएगा। खुद अंदर अंदर घुटना नहीं, सफर नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सिमरन ये मैम। पर्टिकुलर मैन की बात नहीं है। जी अगर हम देखा जाए अपनी एग्जांपल है, हम भी कई बार सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या सोचेगा हमारे बारे में, वो जी क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो उस चीज में कहीं ना कहीं जो हमारी डिजायर होती है हम उसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उस चीज को हमें अवेयर करना चाहिए कि नहीं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। अगर इससे हमें खुशी मिल रही है तो हमें किसी और का सोचने की क्या जरूरत है, ये चीज है। जी मैम, जी मैम। मैम, अभी आप पठानकोट में है, वो नॉर्थ इंडिया में है, यस मैम। हम लोग साउथ इंडिया में रहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मर्द लोग आगे आते हैं या औरत लोग ज्यादा आगे आते हैं? और वेरी आई मीन डिफरेंट एक्टिविटीज में वो भाग लेते हैं, या समझो जैसा आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना, काउंसलिंग के लिए आना, या कोई ऐसा मानसिक पीड़ा के ऊपर कोई सेमिनार चल रही है या कुछ सेशन चल रहा है, उसमें भाग लेने वाले ज्यादा कौन है, लेडीज या जेंट्स? आपके ओपिनियन और आपके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को मायने रखते हुए आप शेयर कीजिए। अगर देखा जाए तो इसमें अगर लोगों को अवेयरनेस है तो इसमें मेंस भी इक्वली पार्टिसिपेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही लेंगी। वो पर उम्र उम्र मैं नो दैट द एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप भी आते हैं इसमें, वो भी आप ऐड करके बता दीजिए। यस मैम। मोस्टली देखा जाए तो यंगस्टर्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो उन्हें ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मैरिटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या है, अगर आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होने लग पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक मैन क्या है मतलब आफ्टर मैरिज, अगर उसे वो चीजें, अगर लड़की उतना एडजस्ट कर रही है तो लड़का भी बैलेंस कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज डिस्प्यूट्स करते हैं। अगर जिसे अवेयरनेस है वो तो आके काउंसलिंग सेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करेगा, लेकिन जिसे नहीं है वही वो चीज कहीं ना कहीं स्प्रेस कर देगा, वो चीज वो अपने आप वेंटिलेट नहीं कर पाएगा। तो मेन मोटो ये है कि हमें लोगों को इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस देनी है। जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, कि आप मैन को इतना हमें एजुकेट करना चाहिए कि हाँ, कि आप यहाँ पे आ सकती है और हमें उन्हें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करेगा। आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी कोई हेल्प कर सके। जी मैम, जी मैम। मैम अभी हम ये जानना चाहेंगे, जो ये मर्द लोग जो है और लेडीज दोनों भी, मर्द और औरत को लेंगे, यस मैम। एक संबंध, शादीशुदा जीवन के बारे में बात करें, तो ज्यादा किस विषय पर लड़ाई आती है? क्या पैसों के विषय पर लड़ाई आती है, या खाना बनाने में, या पसंद नहीं आया वहां पर, किस चीज पर लड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा कपल्स? हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, डाइवोर्स बिल्कुल। आ जाता है, तो किस विषय पर वो ज्यादा लड़ते हैं, या अनबन होती है किस विषय पर? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कीजिए। मैम देखा जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में। जी जी। अगर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैं अगर अपने हस्बैंड से बात नहीं करूंगी तो उसमें क्या है, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। अगर वही चीज है, हम उस चीज को क्लियर करेंगे तो क्या है, वो बात वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। मेरा ये मानना है, हर कपल्स में कहीं ना छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, पर ये है कि अगर हम उसे बात करेंगे, क्लियर करेंगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। दूसरा देखा जाए तो फिनेंशियली डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर हस्बैंड अपना बजट लेके उतना ही चला है लेकिन वाइफ की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है उससे, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है। तो आज की डेट में मेरे अकॉर्डिंग बहुत कपल्स को एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे मतलब एक मैरिटल कपल बोल सकते हैं आप उनको। जी 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 मैम, आपने बहुत सही बात कहा। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस, राइट? यस तो मैम। आप इतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं यस अपने मैम। स्पाउस के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, उतना अच्छा होगा। अभी मैम हम ये जानना चाहेंगे, जब पति पत्नी रहते हैं, वो तो साथ अंत तक रहना निश्चय कर लेते हैं, यस शादी मैम। कर लेते हैं, साथ फेरे ले लेते हैं, सही चलते रहता उनका जिंदगी। तो बिल्कुल बीच मैम। में कोई ना कोई आ जाते हैं, या फैमिली मेंबर, या बहन, या माँ बाप, या सास ससुर, या कोई बाहर वाले अभी अंदर आ यस सकते हैं मैम। वो आ रिलेशनशिप में। जाते हैं। तो जब तीसरा इंसान वो रिश्ता में आ जाएगा, चाहे हम्म। कोई भी हो, इट कैन बी योर पेरेंट, इट कैन बी ब्रदर सिस्टर, इट कैन बी आउटसाइडर्स, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। यस मैम। तीसरा इंसान जब वहां पर आएगा और तीसरे इंसान आपके जिंदगी में मुश्किलें खड़ा कर देंगे, तो हम्म। तब क्या करना है इन दोनों को? सबसे पहले तो की पॉइंट ये है, यूज आई स्टेटमेंट्स, मीन्स हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि हाँ, कि आपकी गलती में, पहले हम दोनों को साथ पे बैठ के उस प्रॉब्लम का हल निकालना है। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को हमें समझना है, या एक हमें एक एम्पथेटिक बिहेवियर को शो करना है। एम्पथेटिक मीन्स हमने अगर अपनी वाइफ को उसके पर्सपेक्टिव से उसकी जगह खड़े होके सोचना है कि अगर उसने ऐसे बिहेव किया तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, तो उसके पीछे क्या कॉज है। अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हो तो आई थिंक समहाउ हम कोई ना कोई इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कि अगर वो थर्ड पर्सन आपकी उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल हुआ है, तो दैट वो तो थर्ड पर्सन है, लेकिन आप दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस थर्ड पर्सन को अगर कोई भी आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट करता है तो इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि आप कोई मतलब उस चीज का कहीं ना कहीं रोल ही ना हो, इफेक्ट ही ना करे आगे, कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी जी। हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, एक केस स्टडी, जहां पर नया नया शादी हो चुका है उन दोनों का। तो वो पति का बहन, छोटी बहन, बस इनके बीच में 1-2 साल का फर्क ही था। तो वो छोटी बहन बार बार कहती थी कि भाई अपनी पत्नी को न्यूज़पेपर पढ़ने मत दो,
शी विल बिकम, वो बन जाएगी, तेज बन जाएगी, वो उड़ जाएगी वो। उसको ऐसे बुद्धू ही रहने दो, ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान हाँ मत दो, टीवी बंद कर दो, हाँ काम पे रख, घर का काम काज में ही उसको रखो। अगर ज्यादा अवेयरनेस हो गया उसको बाहर, तो शी उड़ जाएगी वो एक ना एक दिन। तो बार बार ये छोटी बहन अपने भाई को बोलती थी, तो ये कभी कभी सुनती थी, कौन, पत्नी सुनती थी। तो अंत में बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ, दोनों अलग हो गए। तो इसका अलग होने का कारण कौन था, वो बहन था या पति था या पत्नी, कौन है कारण यहाँ पर, ये आप कुछ सुझा सकते हैं इस राज को? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अब बहन ने बोला कि मतलब अपनी वाइफ़ को इतना मतलब पढ़ने मत दो ताकि उसे अवेयरनेस आए। मतलब उसके कहने का मतलब था कि इसे अवेयरनेस आएगी तो उसे नॉलेज होगी बाहर की चीज़ों का। तो इसमें अलग होने से बेटर है कि वो लड़की इस चीज़ को पॉज़िटिव सेंस में लेती। वो और ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करती अपने एफ़र्ट्स लगा के। मेरा ये मानना है जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी आप एफर्ट्स लेते हो क्योंकि आपको किसी के लिए नहीं कुछ करना, अपने लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है। फिर आप जो एक स्ट्रगल टाइम पीरियड से जब निकलोगे और उसके बाद जब आप कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट हो जाओगे, देन मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पर्सन वो एक अपने आप में ही उसके मतलब एक अपना मैं आप में ही उसका एक मुँह बंद करवा देता है। तो इसके मतलब ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। वो कहते हैं ना, मुँह से मत बोलो, अपने काम से बोलो। जी जी जी, मुंह से मत बोलिए, काम से बताइए। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर यस, देन वर्ड्स। दैट्स रियली बिल्कुल, नाइस। परफेक्ट। अभी मैम, हम अतुल जी के बारे में बात करेंगे, और फिलहाल पुनीत जी भी आत्महत्या कर चुके हैं। यस मैम। तो आत्महत्या क्या एक अच्छी चीज है? ये तो नहीं, सब लोग नहीं बोल के बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 90% विल से आत्महत्या नहीं करना है। 10% लोग बोलते हैं हाँ चलो, सुलझा नहीं सकेंगे तो और क्या कर सकते हैं। तो वही हुआ है बिल्कुल, इन दोनों के हाँ। केसों में, और वो गुजर चुके हैं अभी। तो क्या, अभी हम ये जानना चाहेंगे, हाउ कैन वी हेल्प, हम सभी मर्द जो है भारत में, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हाँ जी, जो डाइवोर्स केस में शिकंजे में फंस चुके हैं, जुड़े बिल्कुल। केसेस में, उनका मदद हम कैसे कर सकते हैं आज मंच पर? क्या आप समाज के लिए किस तरह के आप मैसेज देना चाहेंगे, निडर होकर कैसे फेस करना है ये सिचुएशन? यस। सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग मैंने बोला अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी कम्युनिटी को, एक इंडिविजुअल को और एक फैमिली मेंबर्स को, मेंबर्स में सबको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्या क्या वार्निंग साइन्स आ रहे हैं किसी को सुसाइडल के? अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है कि उसे लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब लास्ट ऑप्शन उनके पास यही है, तो इसमें हमें लोगों को एजुकेट करना है कि नहीं, आप काउंसलिंग सर्विसेज के पास जा सकते हो, किसी से हेल्प ले सकते हो या फिर अपने क्लोज़ वन के पास कोई तो होता है। देखिए, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आप निडर होके सब कुछ शेयर कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये सामने वाला पर्सन हमें जज करेगा, हम बस बोल देते हैं कि हमें बोलना है और कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें मिलता है। लास्ट ऑप्शन अगर हम इस सुसाइड की बात करें, तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले ये चेंज करना होगा कि ये जो हमारी कहीं न कहीं ऐसी थिंकिंग है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस मैंने बोला ना कि जैसे इमोशनल कंट्रोल, जैसे मेल्स को बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि तुम्हें अपने इमोशंस सप्रेस करने हैं। तो हमें इस चीज़ को अवेयरनेस लगानी लानी है अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी में कि नहीं, इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें ऐसी वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करवाने हैं ताकि क्या है, लोगों में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आए और उन्हें पता चले कि अगर प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी है। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन मैम। यस अभी मैम। बड़ी सी प्रश्न है मैम, अगर आपका अनबन है, शादी यस में मैम। अनबन है, तो गुट गुट के मरनी है या उससे बाहर निकलना है? तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? जितना भी ट्राई करे नहीं बन पा रही उन दोनों का, लड़ाई हमेशा हो रही है। तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? क्योंकि आजकल हमने देखा है, डाइवोर्स अभी भी स्टिग्मेटाइज्ड है।
वो बिल्कुल डाइवोर्सी मैम। है या डाइवोर्स कर चुके हैं या कोर्ट को जा रहे हैं, तो सब लोग आके फेर लेते हैं या कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करते हैं, जैसे आपने किसी का खून खर के आए हैं या 100 लोगों का जान निकाल के आए। अगर दो जने डाइवोर्स के इसमें बिल्कुल राह पर बिल्कुल चल रहे वो लोग, बिल्कुल। दे आर गेटिंग डाइवोर्स, तो इतना स्टिग्मा है डाइवोर्स को लेकर। हम्म, तो वो भी मानसिक बीमारी को और बढ़ाती है, यस अकेलापन मैम। की शिकार हो जाती है, लोगों के बातें और ताने सुनने पड़ेंगे आइदर जेंडर के लिए। जैसे अतुल जी के साथ भी हुआ है, यस वो, मैम। वो भी प्रेशर उसका था, लोग उनके बारे में कुछ बोल रहे थे या जो जज थे वो कुछ बोल रहे थे, हाँ जो। तो सब कुछ उसको इफेक्ट हो रहा था। तो हम ये जानना चाहेंगे इससे कैसे हम बाहर निकले, उस स्टिग्मा को तोड़कर। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मेरा मन अगर शांत है या किसी का प्रेशर नहीं है, कैन यू शेयर समथिंग? यस मैम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक रिलेशनशिप में पर आपकी नहीं निभरी, हमने बड़े एफर्ट्स लिए उस चीज़ को और उस चीज़ को लेके हम कहीं न कहीं घुट-घुट के जी रहे हैं। वो जीना भी एक टाइप का जीना नहीं हुआ, देखा जाए तो। वो भी हम एक टाइप के डिप्रेशन के ही शिकार हो रहे हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप क्या है कि उससे सेपरेट हो जाओ। एट लीस्ट आप अपनी लाइफ़ अपने अकॉर्डिंग जियो। लेकिन उसके बाद भी हमें सोसाइटी के बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी ही हमारी ऐसी है। तो उससे रिलेटेड ये है कि आप अगर आप खुद में इतने स्ट्रांग हो कि आप में है इतनी कैपेबिलिटी कि आप सब कुछ कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। किसी का राइट नहीं है कि वो आपको कुछ बोले। अगर कोई बोलेगा भी, तो वो बैक बीचिंग करेगा, पर मुँह पे आके कोई नहीं बोलेगा। मेरा ये मानना है। जी जी जी, अगर मुंह पे भी आके बोले तो आप दुगना कुछ बोल देना उनको, हाँ, बिल्कुल, दुगना कुछ हर्ट बोलो कर देना, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यहाँ पर एक मर्द और डेयरनेस होनी औरत। चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में कि जी अगला बोलने से पहले 2 बार सोचे। जी 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 जी। So, irrespective of gender, all of you face your lives very, very strongly, my dear friends. Do not give a chance to anyone to make use of you. It could be your wife, it could be your husband. You stay strong. आपका मानसिक परिस्थिति सही रहना है, या सोच विचार आपका सही रहना है, बिल्कुल, बिल्कुल, या चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि आप बिल्कुल, सही राह पर चल रहे हैं, आपका जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल। दैट्स अगर हम सही हैं तो हमें किसी का सोचने की क्या ज़रूरत है? अगर गॉड ने हमें एक लाइफ़ दी है, उसमें भी हमने अच्छे से नहीं लिव लॉन्ग किया, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? क्या। हमें अपना सोचना है, हमें लोगों का नहीं सोचना। जी जी। आज सिंपल। की डेट में अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तब तो डेफ़िनेटली बोलेंगे। जी जी। सिमरन मैम, अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्या टीनेज जो बच्चियां हैं और बच्चे लोग जो है, क्या आपसे आके कभी बात करते हैं, देखो दीदी हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टीनेज का वो जो एज है, फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन रहती है ऑपोजिट जेंडर्स हाँ, के, तो कभी कभी उन लोग फंस जाते हैं उसमें, पता नहीं पढ़ाई पर ध्यान तो नहीं रहेगी ज्यादा, तो आकर्षित हो जाते हैं थोड़े लोग, थोड़े बच्चे। हाँ तो जी। कभी कभी आके बात करते हैं आपसे, वो भी उनका एक अलग सा डर रहता, कि यस कोई मैम। देख लिया हम इस दोस्त से बात कर रहे हैं, या मम्मी पापा को पता चल गए, तो उसका स्ट्रेस अलग ही हाँ जी। होती है। तो क्या कभी छोटे बच्चे जो 13 टीनेज लोग जो आके आपसे, दीदी ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, क्योंकि आप टीचिंग के लाइन में भी है तो थे वहां पर, बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल अनुभव मैम। क्या आता था, शेयर कीजिए आप। मेरा ये मानना है कि अगर कोई मतलब टीनेज आप मेरे साथ ये चीज़ शेयर करता है, तो हम उसे इस चीज़ को शायद वो पर्टिकुलर एक एज टाइम पीरियड भी ऐसा होता है टीनेज का कि उस टाइम हमें ऑपोज़िट एक्स पीरियड होती है, कहीं न कहीं। तो उस चीज़ में हम अगर उस चीज़ को गाइड करें, कहीं न कहीं उन्हें समझाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ा चेंज तो आता है उनके उनमें। लेकिन अगर उस टाइम उन्हें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और कोई ब्रदर या सिस्टर भी ऐसा नहीं है कि उनकी बात सुने, तो वो कहीं न कहीं उस टाइम गलत सोसाइटी में और ज़्यादा पड़ते हैं। जी अगर आपके पेरेंट्स ही आपके साथ फ्रेंडली हैं, फादर लोग तो चलो थोड़े मतलब बोल्ड होते हैं, पर मदर्स तो काफ़ी मतलब एक फ्रेंडली नेचर की होती हैं। तो अगर आप उनके साथ भी शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है हमारी मदर से अच्छा हमारा फ्रेंड कोई नहीं है। अगर वो भी स्ट्रिक्ट है, तो पेरेंट्स कहीं न कहीं बच्चे इस टाइम गलत सोसाइटी में ज़्यादा पड़ते हैं। मैटर ये करता है कि हमें एक टाइम पीरियड आता है, हमें बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। ये नहीं बनना पड़ता कि हमें सोचना पड़ता है उनके
एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करना पड़ता है कि इस टाइम पीरियड में उनकी थिंकिंग क्या हो सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें गाइड करना होता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये शेयर किया, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम यस, चल रही है तो द मदर इज द बेस्ट फ्रेंड। यस मैम, माँ के पास जाए और अपना जो भी है बात है सब सीक्रेट्स बता दे, यस सच्चाई के मैम, साथ पेश आ जाए, बिल्कुल तो मैम, आपका समस्या का हल हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा मैम, नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर एक बड़ी क्वेश्चन आएगी अभी। थोड़े लोग खुश नसीब नहीं है और उनके माँ बाप नहीं होते हैं, या बाप रहते हैं, बाप है माँ नहीं है, माँ गुजर चुकी है। बिल्कुल मैम, तो बिन माँ का बच्चे बहुत बहुत सफर होते हैं। वो तकलीफ वही जाने, जिनके माँ नहीं है वो समझ जाएंगे जो बिल्कुल, मैं वो बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैम। तो हम ये जानना चाहेंगे ऐसे बच्चों का, चाहे वो मर्द बच्चा हो या औरत बच्ची हो, तो ऐसे बच्चों का सहायता या उनको काउंसलिंग देना, किस हद तक हम आगे आ चुके हैं इनके मदद करने का, जो माँ बिन माँ का बच्चे बच्चे बिल्कुल, हैं। इट इज़ अ वेरी, देखा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जो इस फेज से निकलता है वो तो उसे ही पता होगा। देखा जाए तो हम ऐसे बच्चों की हेल्प वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो होगा जो उन्हें समझता होगा, वो उन्हीं से ही कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं, मतलब उन बच्चों से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनको बाय बर्थ ही सब कुछ मिला होता है, बहुत पैम्परिंग चाइल्ड रहे होते हैं। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोल्ड होते हैं, कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। उन्हें पता है प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है, उन्हें पता है अपने डिसीजंस हमें इंडिपेंडेंटली कैसे लेने हैं, क्योंकि शायद स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है, देखा जाए तो। और ऐसे बच्चों का कंपैरिज़न तो हम उन बच्चों से अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके बोल्ड है। मेरा ये मानना है कहीं न कहीं। जी जी मैम। अभी कभी कभी हमारे साथ भी जब गलत होता है या कोई हम हमें परेशान करते हैं या हर्ट करते हैं अपने लोग, हाँ जी। हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे हुँ, पति, जो भी हो, हाँ जी। हमारे बच्चे हर्ट करते हैं, हाँ जी। तो कभी कभी लगता है ये जिंदगी किस फायदा, क्या फायदा है इस हुँ, जी कर। अपने ही हमें हर्ट कर रहे हैं, हाँ अपने ही जी। हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो इस जिंदगी का क्या फायदा, खत्म ही कर दूं तो हो जाता ना। कभी कभी मैं भी ऐसी सोचती हूँ, है सच। तो होता मैं है भी ऐसा। यहाँ इस जिंदगी को खत्म कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता। हुँ, जी। तो तो आज तक हम लोग स्ट्रांग, बहुत सारे औरत ये अंडरस्टैंड करते हैं, औरत और मर्द भी अंडरस्टैंड करते हैं, कहीं ना कहीं एक बार भी अपना जिंदगी में ऐसा दिन आया होगा कि भाई क्यों जीना है, किसके लिए जीना है। ये सभी लोग जो मैं प्यार करती हूँ, जिनका मैं हम मदद करते हैं, साथ देते हैं, वही लोग हमको दुख पहुंचाते, तो क्या फायदा। तो ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे, कैसे स्ट्रांग रहना है, हुँ, हिम्मत नहीं हारना। अगर वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, वो लोग आपको तंग कर रहे, अगर वो वक्त अगर आपकी जिंदगी में आया है, तो खुद से ज्यादा प्यार करो। जब कोई आपको प्यार नहीं करते, आपका सम्मान नहीं करते, आपका आदर नहीं करते, खुद दुगना और तिगना, आई मीन 3 4 times यू लव योर सेल्फ, दैट विल प्रोटेक्ट यू। दैट इज माई टेक्निक। कोई येस। है या नहीं है साथ में, तो आई बिकम स्ट्रांग, आई लव माई सेल्फ। सो व्हाट इज द टेक्निक दैट यू वुड लाइक टू शेयर टुडे? आई वुड लाइक टू शेयर मैम, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, होता है ऐसे मेरे साथ भी होता है, जैसे कभी कोई मुझे बहुत हर्ट कर दे, तो उस चीज में हम कैसे डील करते हैं, उस टाइम क्या होता है, एक पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि यार मेरे साथ क्यों किया ऐसा, हमें ये चीज इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं थी और इसने हमें ऐसे बोला, तो हम उस टाइम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, उस टाइम उस पेश प्रॉब्लम को रिएक्ट करने से बेटर है हम कामली उस चीज को थोड़ा टाइम दें। मुझे लगता है टाइम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर हम टाइम देते हैं और पेशेंस रखते हैं, थोड़ी सी कुछ टाइम बाद वही चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, और उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करने से बेटर है ये फील होता है कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया। टाइम और पेशेंस, जो कि शायद कहीं ना कहीं आजकल हम लोगों में नहीं है। हम एकदम से अगर प्रॉब्लम आती है, कोई हमें बोलता है, हम एकदम से रिएक्शन देते हैं उस चीज का। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा टाइम लो और थोड़ी पेशेंस रखो, फिर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है कि आपको खुद ना कुछ उस प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन मिलेगा, और उस पर्सन को भी ये चीज रियलाइज होगी कि हमने उसके साथ गलत किया। टाइम जी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जी जी।
time is the best healer, time is the best thing that can bring all Yes, the ma'am. solutions to your life. मैम, हम अभी ये पूछना चाहेंगे आपसे, इस दुनिया में ज्यादा अच्छे लोग हैं या बुरे लोग? आई थिंक इक्वालिटी है। अगर बुरे लोग हैं तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, दोनों में कहीं ना कहीं इक्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप यही प्रश्न मुझे पूछोगे तो मैं ये कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे हैं, बहुत कम लोग बुरे हैं। तो ये दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप इन सभी लोगों से मिलना अभी बाकी है, अभी नहीं मिले, अच्छे लोगों से अभी तक यस नहीं मैम। मिले। अगर बुरे लोग आपकी जिंदगी में यही लोग हैं, यही है मेरा दुनिया, नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग बाहर है जो आपका मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल आप, मैम। हाँ, आप बस उनको ढूंढना है या इंतजार करना है, वो आपका मदद जरूर करेंगे, सही तरीके से करेंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है। इफ somebody is हमें bad in your life, am I right, मैम? यस मैम, अगर हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है और आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। जी जी जी। सिमरन जी, अभी हम ये जानना चाहेंगे आपका कॉलेज के बारे में। यस आपकी मैम। कॉलेज के दिन कैसे थे? आप किस तरह की लड़की थे? बहुत शर्मीली थी या बहुत बोल्ड थे? आप क्या सीखे हैं कॉलेज में? किस लाइफ स्किल सीखा है आपने कॉलेज से? हम्म, सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी। इंट्रोवर्ट मीन्स अपने आप में रहना ज़्यादा, स्कूल टाइम ऐसा ही था। फिर जब कॉलेज टाइम में मिला तो एक अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे खुद को एक्सप्रेस करने की। सबसे पहले तो मैंने अपना स्टेज फ़ोबिया दूर किया। मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी थी, जिसके साथ कंफर्टेबल होना, बस उसी के साथ ज़्यादा बातें करनी, पर उसके साथ बहुत ज़्यादा कर देनी, एक्सप्रेस कर देना। पर जिसके साथ नहीं हो पाता था, उसके साथ नहीं हो पाएगा, कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो कॉलेज टाइम से मैंने ये चीज़ सीखी। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी-थोड़ी करके एक्सट्रोवर्ट हुई इंट्रोवर्ट से और मैंने अपने सोशलाइज़िंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव किए। तो ये चीज़ मुझे अपनी कॉलेज लाइफ़ से मिली है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब काफ़ी लर्निंग स्किल्स, स्टेज फ़ोबिया दूर हुआ। अपनी मास्टर्स डिग्री में मैंने और ज़्यादा सीखा, अपनी स्पेशलिटी में और ज़्यादा करने का टाइम मिला और काफ़ी मतलब अच्छा टाइम पीरियड था वो। आई थिंक वो डेज़ दोबारा नहीं आएँगे, बट इट वाज़ रियली नाइस टाइम पीरियड। यादें तो है ना? यादें तो हैं, मेमोरीज़। जी जी जी। अभी आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इट बिल्कुल। कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त लोग, सहेली, आपके इन लॉज जो है, सब लोग। यस। इन सभी लोगों, सब लोग जो है, आप किससे कौन सी अच्छी बात सीखे हैं? अभी हमको जिंदगी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, सब लोग, हाँ जी। रिश्तेदार, बाहर वाले, सभी, ऑल ऑफ देम। तो आपके जिंदगी के ऊपर प्रभाव किसका था? आपका रोल मॉडल कौन है? ये बात हमको जाननी है। अगर मैं अपने रोल मॉडल की बात करूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी। काफ़ी मतलब उनका मोटिवेशन रहा है मुझे कि मैं इस मतलब फ़ील्ड में और आगे गई। तो मैं कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए अपना रोल मॉडल उन्हें ही मानती हूँ कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन आता है, जो आपको कभी आपकी वीकनेस के लिए जज नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ देख के आपको मोटिवेट करेगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो यही मतलब एक आज सबसे बड़े रोल मॉडल तो अभी तक वो ही रहे हैं मेरी लाइफ़ में। ये अंत तक भी रहना चाहिए, अंत दैट्स तक रियली भी रहना चाहिए। यस, दैट्स रियली नाइस। बहुत कुछ नसीब है मैम आप, दैट्स रियली नाइस, और रहना भी आप, यस दैट्स मैम। रियली नाइस। मैम, अभी हम ये जानना चाहेंगे, अगर सिमरन को बदलना है, वो क्या बदलना चाहेंगे? अगर आपने, अगर ऐसे कोई वक्त आया है, या मैं ऐसा प्रश्न आपसे पूछूं, सिमरन में क्या बदलाव देखना चाहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलते कई बार दूसरे का सोचती हूँ अच्छा और मेरा लॉस हो जाता है उस चक्कर में, मुझे लगता है। बहुत बार ही होता है मेरे साथ। अच्छा सोचती हूँ सबका, पर उस चक्कर में कई बार मेरा भी लॉस हो जाता है। तो मुझे लगता है वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है कहीं मने। इमोशनली ज़्यादा सोचती हूँ मैं, प्रैक्टिकली कम। तो वो चीज़ कहीं न कहीं कई बार अनदर पर्सन उस चीज़ का एडवांटेज लेता है। बट ये है कि इमोशनली ज़्यादा हूँ, प्रैक्टिकली कम।
पर कुछ चीज़ों में पर्सन को प्रैक्टिकली भी होना पड़ता है। हमारी तरह बन जाइए। ये हम आपकी तरह ही थे, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, और बहुत बहुत लोग फायदा उठाने लगे तो फुल स्टॉप तो डालनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, सब प्रैक्टिकल बन गए। अभी आज हम कम इमोशनल, ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। एंड आई एम हैप्पी, अभी मैं खुश हूँ। अभी खुश हूँ। खुश, हाँ, हाँ, वही तो मैम। क्योंकि आपने कहा आप इतने इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो जितना हम प्यार से पेश आए, नर्मता से पेश आए, उतना बिल्कुल, थोड़े लोग एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज तो लेते हैं। थोड़े लोगों को कट कर देनी है, प्रैक्टिकली उनके साथ डील करना है। बिल्कुल। दैट्स रियली नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैम, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू मैम सो मैम अभी आप पठानकोट में रह रहे हैं, अभी नुपुर से हैं आप, अभी तो मच। फिलहाल आप पठानकोट में हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे आपके ट्रैवलिंग के बारे में। यस मैम। तो कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर चुके हैं, भारत के कौन कौन से स्टेट्स आपने ट्रैवल कर चुके हैं? आई वेंट टू केरला, देन मनाली, देन कुल्लू, देन गोवा, देन दिल्ली, बॉम्बे। ये सब चीज़ें मैंने ट्रैवल किया है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। यस डियर। जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं मैम? पीस ऑफ माइंड, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जी। मुझे लगता है अब हम बहुत दूर आ गए हैं। अब हम मतलब शांति है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब सिर्फ़ अपने बारे में हमें सोचना है, अपना एन्जॉयमेंट करना है, अब अपनी एडवेंचर्स करनी है। आप एडवेंचर्स में भी बहुत रुचि रखते हैं, तो किस यस तरह मैम। के एडवेंचर्स आप भाग लेते हैं? लाइक बंजी जंपिंग, ओ वाओ। लाइक पैराग्लाइडिंग, आई लव टू डू दिस एडवेंचर। मुझे तो डर लगती है मैम, चक्कर मुझे भी भी आ लगती जाता है थी वहां मैम। पर ठहरने से ही मुझे। हाँ, मुझे एन्जॉयमेंट मिलता ग्रेट, दैट्स रियली है। नाइस, वेरी वेरी नाइस। कितने बार आप जा चुके हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में? आई थिंक 2 और 3 टाइम्स, ज़्यादा नहीं मैम, बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। अभी मौका नहीं मिला इतना, पर कभी मिलेगा तो आई वांट टू एक्सप्लोर। दैट्स रियली नाइस, एंड शेयर द, फिर आके आप शेयर कीजिए आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कैसा है। यू कैन शेयर दैट एज वेल। यस मैम, श्योर मैम, पक्का। जी। अभी सिमरन मैम आप क्रिएटिव भी हैं, आप क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देते हैं, दैट इज समथिंग बिल्कुल। नाइस। ओरिजिनलिटी आती है जब क्रिएटिव रहते हैं हम यस मैम। लोग। तो किस विषय में आप क्रिएटिव है, या किस तरह के क्रिएटिविटी आप रुचि रखते हैं? मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। लाइक और सेल्फ केयर, लाइक हमें अपने बारे में भी कभी हम इतनी ज़्यादा कई बार हेक्टिक हो जाता है हमारा शेड्यूल कि हम अपने बारे में अपनी केयर करना भूल ही जाते हैं। तो वो एक भी काइंड ऑफ अपने आप में भी क्रिएटिविटी है कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए जिससे हमें हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। तो ये काइंड ऑफ क्रिएटिविटी मुझे लगता है करनी चाहिए हमें। चाहे आप जितने मतलब बिज़ी हैं, अपने बिज़ी शेड्यूल से हम हाफ एन आवर भी अपने लिए निकालें, तो कहीं न कहीं हमें रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है। जी जी जी। आप म्यूजिक में भी रुचि रखते हैं, किस यस तरह मैम। के म्यूजिक में रुचि रखते हैं? क्या भक्ति संगीत है या बॉलीवुड, या व्हाट्स इट? आई लाइक टू मोस्टली हियर ओल्ड सॉन्ग्स। मुझे जैसे ये जो पुराने गाने होते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें एक काइंड ऑफ पीस मिलेगा आपको जब आप सुनेंगे इन्हें। कोई शोर-शराबा नहीं होगा, शांति सी होगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो मैं ज़्यादातर वो ही सुनती हूँ। क्या आप रिस्क लेते हैं लाइफ में? क्योंकि रिस्क लेना एक बड़ी बात है, थोड़े लोग रिस्क यस मैम। नहीं लेते हैं, बस कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। क्या आप एक रिस्क टेकर है? अगर है तो किस तरह के रिस्क आप ले चुके हैं आज तक? वैसे मैंने अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने ऐसा कोई अभी रिस्क लिया नहीं है। बट हाँ, कभी-कभी ऐसी चीज़ आती हैं कि ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो ये एक रिस्की काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर उसका लॉन्ग टाइम एडवांटेज भी होता है कहीं न कहीं, तो उस चीज़ के लिए हमें रिस्क लेना भी पड़ता है। तो ये है कि अगर उसका एडवांटेज अच्छा है, तो कभी-कभी रिस्क लेना मतलब लेना पड़ता है। किसी अच्छे काम को स्टार्ट करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बिज़नेस करना है, तो हमें उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। जी मैम, जब कभी आप नाइंसाफी देखते हैं, आप जब किसी से मिलते हैं या समाज में जब आप मिलते हैं लोगों से, तो कभी कभी नाइंसाफी दिखाई देती,
यस मैम। के साथ ऐसा हो रही है या उनके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देती है, तो आपके मन में तब क्या लगता, मैं कुछ करूं उनके लिए या मैं पीछे हट जाऊं या देखकर अनजान मारूं, या मेरे मन में वो खटकती रहती ना, मैंने कुछ नहीं है हाँ, करा उनका, ऐसा आपका फीलिंग क्या है, आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे सिचुएशन में? मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत डिपेंड करती है, सिचुएशन कैसी है। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो सिचुएशन क्या है उस चीज़ में? अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है हेल्प करनी चाहिए उस चीज़ में। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम बहुत हेल्पलेस होते हैं। हम चाहते भी हैं कुछ अच्छा करने, पर हम चाह के भी नहीं वो चीज़ कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो चीज़। वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल, हेल्पलेस होते हैं उस टाइम हम। चाह के भी हम कुछ कर नहीं सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में ना गलती पर्टिकुलर सिचुएशन की है, ना खुद हमारी है, वो बस सिचुएशन ही वैसी, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। लेकिन हाँ, जहाँ आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके कंट्रोल में, तो वहाँ डेफ़िनेटली मुझे लगता है हेल्प करवानी चाहिए। जी मैम, जी मैम। अभी हम ये जानना चाहेंगे, अगर आपको कहीं दूसरे स्टेट में आके आप विद रिगार्ड टू साइकोलॉजी या साइकेट्री के विषय पर आप डील करते हैं, दूसरे स्टेट में आकर कुछ ऐसा वर्कशॉप्स लेनी है या काउंसलिंग सेशंस लेना है या काम करना है, अगर आपको कहीं वहां पर एक्सपोजर मिल गए, क्या आप जाने के लिए तैयार है, रिस्क लेना चाहेंगे, या यू आर कंफर्टेबल इन पठानकोट? येस मैम, आई विल डेफ़िनेटली टेक द रिस्क। मुझे एक्सप्लोर मिलेगा तो आई विल श्योर, मुझे भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी एक लर्निंग होगी, डेफ़िनेटली आई गो। जी जी। अभी हम ये जानना चाहेंगे, सिमरन जी में क्या अच्छा लगता है, खुद में क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे मुझे खुद में ये लगता है कि पेशेंस है। मुझे लगता है कि मेरे में पेशेंस है। मुझे पता है किस पर्सन के सामने हमें कैसे डीलिंग करनी है, कैसे किस सिचुएशन में मुझे रिएक्ट करना है, कहाँ मुझे बोलना है और कहाँ मुझे मतलब नहीं रह पेशेंस है मुझ में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प अगर कोई पर्सन मेरे क्लोज़ है, तो मैं उसकी साइकोलॉजी बहुत ईज़िली समझ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है। या लेट मी पुट इट राइट, आपकी जिंदगी में किस तरह के चैलेंजेस आपने देखा है या भुगत चुके हैं या सामना कर चुके हैं? कैन यू शेयर दैट, आर यू रेडी टू शेयर द चैलेंजेस दैट यू फेस? देखिए, अगर बस में चढ़े या कोई कोई तो पिंच कर देते हैं या हुँ, धक्का मार के चले जाते हैं या आंख मार के जाते हैं, ये तो वो होता ही होते। ऑटो, हम लोग ऐसे चलते जाते तो ऑटो हुँ, वाला आंख मार देता है हुँ। ऐसे सडनली, वो उम्र ना देखते हैं कुछ भी, बस हाँ, बिल्कुल, कर ऐसे देते हैं। क्या है। तो बहुत बहुत ये मुश्किल बात है। तो जस्ट अबाउट मे बी 3 months बैक देयर वाज वन सिचुएशन, छोटे बच्चे टीनेजर्स हैं और एक यस मैम। औरत जा रही है वहां पर, दे जस्ट बैंग हर लाइक दैट एंड गो ऑफ। हाँ। तो ऐसे होती रहती है चैलेंजेस एक औरत के साथ, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो आप इसके साथ कैसे डील करे हैं? नहीं हुआ है लेकिन दूसरों के साथ हुआ है, तो आप क्या करे थे उस सिचुएशन में, या इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं एक ऐसी सिचुएशन हुई थी, जैसे एज़ अ चैलेंज इतना हुआ नहीं, बट एक बार हुआ था। जैसे मेरा एग्ज़ाम था, मैं और मेरी फ्रेंड इकट्ठे गए थे। तो हम लोग क्या किया कि हमने एक कैब बुक करवाई। तो उस चीज़ में हमें जो वो ड्राइवर था, हमें थोड़ा अनईज़ी होने लगा कि थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल होने लगा उस टाइम। तो हमने क्या किया उस टाइम अपने फ़ोन से हमने ऐसे ही जस्ट क्या किया, हमने कैब रुकवा दी, उसकी नेम प्लेट की हमने फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद हमने कॉल किया कि हेलो, मतलब ऐसे ही हम फादर ये कमिश्नर ये वो सो। तो उस चीज़ से हमने मतलब उस इनडायरेक्टली खुद को सेफ किया और हम इस चीज़ से कहीं न कहीं हम निकल पाए। और मुझे लगता है कि उस टाइम भगवान साथ था तो सब कुछ ईज़िली हो गया। बट ये चीज़ें कहीं न कहीं आज की डेट में देखा जाए तो बहुत हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। जैसे गर्ल्स को गुड टच, बैड टच इसके बारे में मुझे लगता है स्कूल्स में भी हमें अवेयरनेस करवानी चाहिए।
इसीलिए जब मैं ऑटो में बैठती हूँ बीच में नहीं बैठती हूँ, कोने में बैठती हूँ। अगर अकेले सफर कर रही हूँ ना, कोने में, अगर कुछ ऐसा वैसा तो मैं जंप मारूं, तो कुछ मेरे को मार लगे तो भी चलेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा कोने में होता है, बैठूंगी क्योंकि कोने डर में लगा बैठो। रहता है, वो इंसान अच्छा है या बुरा हाँ, कोई भी नहीं हमें नहीं जानता। पता होता। जी। इसलिए मैंने सोचा है कि आगे से जब भी आप कोई कैब बुक करवाओ तो हमेशा उसकी नेम प्लेट की फोटो क्लिक करो उसके सामने। उनके सामने ही करना हाँ, है, उनको उनके मालूम सामने होना क्लिक, चाहिए कि हाँ, भाई हम कर चाहिए रहे हैं। हमें, पीछे ताकि से उन्हें ना ले, लग सामने से आके लो। हाँ जी, सामने से आके लीजिए। हाँ, उसके सामने जो हाँ, देन इट्स हाँ गुड। जी। और सिर्फ लेना ही नहीं मैम, वो जो है वो फोटो जो लेते हैं अपने परिवार वालों के साथ या अपने या हाँ सहेली जी, के साथ या चाहने वालों के साथ शेयर करनी है कि भाई शेयर करनी है। बस निकाल के अपने फोन में नहीं रखना है, प्लीज नहीं, शेयर इट, ताकि शेयर लोगों इट, को मालूम है कि वे आप अवेयरनेस प्रोवाइड करें। अवेयरनेस प्रोवाइड करना बिल्कुल मैम, है। अभी या ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हो वो सोचे इन चीजों को बहुत। जी जी जी, यू आर शेयरिंग वेरी नाइसली। खुद के जो इंसिडेंट्स भी जो हुआ है आपके साथ नहीं है शेयर ना, करें, मेरा भी इंसिडेंट्स पूरा आप मेरे तरफ से भी शेयर करने के लिए। स्टोर करें ना। हम्म, आपको खाना खाने में कौन सी चीज बहुत पसंद है मैम? आई लव टू इट कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, व्हाट कढ़ी इज राइस। कड़ी चावल, वो बता सकते हैं क्या? कढ़ी चावल राइस, आई नो, कड़ी चावल इज दाल चावल इज इट? नो नो, कढ़ी राइस, जैसे मतलब पकोड़े वाली कढ़ी होती है, और एक आलू गोभी वाली कढ़ी भी होती है। जी। आपको सब पकवान में आपको सबसे अच्छा पकवान कौन सा आता है? पठानकोट का सबसे फेवरेट पकवान कौन सी है, और आपको कौन सी वाली पकाने में अच्छा माहिर है? आई थिंक मैं क्या बोलते हैं, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, बट ये है कि मैं, अगर आप बोलो बहुत परफेक्टली बनाती वो नहीं है, बट अभी लर्निंग टाइम पीरियड चला है, बनाती रहती हूँ इसे कुछ कुछ। तो वो है कि अगर मैं सबसे, मुझे अ, पकोड़े बहुत पसंद है। पठानकोट में हमारे, पठानकोट में मशहूर हैं, फेमस हैं, जैसे एक ताए के पकोड़े बहुत फेमस माने जाते हैं यहाँ पे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। जी जी जी। पठानकोट में सबसे मीठा वाला चीज जो है मिठाई, व्हाट्स द फेमस स्वीट ऑफ पठानकोट? कौन सी मिठाई बहुत फेमस है? काजू कतली, एंड छोटी रसगुल्लियाँ मिलती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी होती हैं, कौन सी रंग का? व्हाइट कलर का, ओ वाह। क्यूट, छोटी-छोटी। जी। मैम अभी हम ये जानना चाहेंगे एक बड़ी सी प्रश्न, वो है आर्थिक परिस्थिति। चाहे मर्द हो या औरत हो, आर्थिक परिस्थिति बहुत बहुत मायने रखता है। तो आर्थिक या परिस्थिति या फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो आप अपने अनुभव से ये बताइए हमें कि वह एक इंसान खुद का अकाउंट रखना है, शादी के बाद भी अपना खुद का एक अकाउंट रखनी है, या मिलजुल कर साथ में अकाउंट रखनी है, कैसा? क्योंकि हमने देखा है जॉइंट अकाउंट में भी बहुत सारे लड़ाई आ चुके हैं, हुँ, सेपरेट अकाउंट रखने से भी लड़ाई आ चुकी है कि आपके अकाउंट इतना इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं। तो क्या बिना बोलकर हम अपने लिए एक छोटी सी अकाउंट रखें, कल के दिन अच्छा हो या बुरा हो, हमारे पैसे हैं उस अकाउंट में, इज्जत से जी सकेंगे, किसी के हाथ किसी के सामने हाथ ना फैलाए हम, चाहे बिल्कुल, मर्द हो या औरत। तो अपने लिए, खुद के लिए, अंत तक, अंत जो हम सांस लेते हैं वो, तब तक हमारे ही खुद के पैसे काम आना है, किसी और के पैसे के सहारे हम नहीं जीना है। ये बिल्कुल। बात एक अच्छी बात है। तो आप क्या बहुत कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसे ये अपने अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, तो जॉइंट अकाउंट से और अपना अकाउंट, मुझे लगता है अपना अकाउंट होना चाहिए। अगर वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसका अपना अकाउंट होना चाहिए, और अगर नहीं भी है, तब भी होना चाहिए। मेरा ये मानना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस मैम, दैट्स रियली नाइस। तो यहाँ बड़ी सी मैसेज है सभी लोगों के लिए, यस मैम, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे हो मर्द हो या औरत हो या थर्ड जेंडर भी हो, खुद का एक अकाउंट रखिए। जो पैसे वो कमाते हैं थोड़ा अपने लिए बचा के रखिए, क्योंकि कल का बिल्कुल, दिन कैसा है किसी ने नहीं देखा। मरना है तो इज्जत से मरना है, खुद के पैसों से मरना है, यस मैम, और खुद को दफन करने में भी अपने ही खुद के पैसे काम आए, किसी एक का काम दफन आएँगे। नहीं चाहिए, राइट? सो यस मैम, दैट्स रियली नाइस एंड आई अप्रिशिएट योर थॉट्स। आपके जो सोच विचार है बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत नेक है, थैंक दैट्स रियली नाइस। थैंक यू मैम। सिमरन जी को गुस्सा आता है? अगर आता है, कब आती है गुस्सा मैम आपको?
आता है मैम, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। एकदम से आता है, फिर एकदम से शांत भी हो जाता है। पर ये है, आता अपनों पे ही है। मैं सबके सामने नहीं सबको एक्सप्रेस कर सकती, खुद को हर्ट कर सकती हूँ पर किसी को नहीं हर्ट कर सकती, ये है। जब गुस्सा हो जाते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कुछ बोल देते हैं या कि अपने पे फीलिंग्स? गुस्सा निकाल लिया, अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड पे निकाल लिया, थोड़ा बोल दिया, उसके बाद शांत हो जाता है खुद ही मन। अभी सिमरन मैम ये जानना चाहेंगे हम, आपको किसी चीज का डर लगता है? देखिए अभी मुझे, देखिए मुझे सांपों से डर है, पानी से डर है। सेम हियर, तो सांपों से तो मुझे भी है। जी जी, मुझे भी है। अगर मैं जो स्क्रोलिंग करती हूँ ना, तभी भी दिखा ना वहां पे एकदम, आई विल, हाँ, मैं नहीं दिख सकती हूँ एकदम। मैं भी नहीं देख सकती। मुझे एक चीज़ और से भी फ़ियर है, डॉग फ़ोबिया बहुत कम लोगों को होता है, बट मुझे है क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था और उसके बाद से मुझे एक फ़ोबिया जैसा हो जाता है। जैसे मैं किसी भी डॉग को देख लूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस ये आके मुझे ग्रैब कर लेगा। जैसे अभी आपने कहा स्नेक का भी है आपका जो हाँ, फोबिया स्नेक का है, भी है। और आपकी तरह मेरे को भी डॉग फोबिया है, मुझे हाँ, भी। क्योंकि मेरे साथ भी एक हादसा ऐसा हुआ है जब मैं 16 ईयर्स के थी, 15 16 15 एंड हाफ ईयर यस की मैम। थी, मैं इंटर सेकेंड ईयर में थी, प्लस 2 में थी। तो हमारे खुद का घर का कुत्ता हमें काट लिया, कम से कम अच्छा। 30 बार मेरे पैर पे काट दिया वो। तो अब हुँ, कहीं ना कहीं मैंने डॉग्स देखा ना, तो घबराहट हुँ। होती है मुझे, हाँ, एंग्ज़ायटी हो जाती है, मुझे एंजाइटी हो दूर से जाती है। एंग्ज़ायटी होती है। मुझे और भी सचमुच सेम। में वो डॉग्स जो भी है, मुझे देखकर कुछ ना कुछ तो वे ऐसे फेसेस बनाते हैं, मुझे डर लगती है। मुझे वो भी। फोबिया अभी भी मुझ में है, या कोई डॉग लाते हैं तो वो लोग उस तरफ है तो मैं दूसरे रोड में चली जाऊंगी, गली के कुत्ते हैं तो दूसरे गली पकड़ के आ जाऊंगी, मैं घर पे राउंड अबाउट आ सेम जाऊंगी। हियर, सेम हियर। देखो हमारे में सिमिलैरिटीज़ हैं। जी 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 जी, दैट्स रियली नाइस। यस। अभी मैम हम ये जानना चाहेंगे, आपके बकेट लिस्ट में और क्या क्या चीजें हैं? अभी आज तक आपने इतना तो कुछ कर लिए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। से मेरा अगर देखा जाए तो मेरा ये है कि मैं कुछ काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऐसे मतलब लोगों को अवेयर करूं कि उन्हें एक बोलते हैं ना जागरूकता हो सके कि हमारी सोसाइटी में क्या है, क्या नॉर्म्स हैं, जिस चीज़ के बारे में जो मुझे लगता है कहीं न कहीं चेंजेस आने चाहिए। उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत से लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। तो उस चीज़ के बारे में अगर मैं कुछ सर्विसेज़ उन्हें प्रोवाइड करूँ, तो मेरे ऐसे करने से अगर कुछ चेंज आता है, तो मैं ये चीज़ करना चाहूँगी डेफ़िनेटली, इस चीज़ की तरफ जाना चाहूँगी, कुछ सर्विसेज़ मैं ऐसी प्रोवाइड करना चाहूँगी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन लेना चाहेंगे या सिर्फ ऑनलाइन ही रखना चाहेंगे ये सेशंस? अगर किसी को चाहिए तो मैं ऑनलाइन भी दे सकती हूँ, अगर ऑफ़लाइन मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो डेफ़िनेटली आई विल गो देयर। जी मैम। अब जी जी जी, बताइए। हाँ, तो अगर मतलब डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन कैसी है, बट मैं अगर एबल हूँ डेफ़िनेटली अगर मेरे कुछ सुझाव, मेरी कुछ सर्विसेज़ देने से अगर किसी की हेल्प होती तो डेफ़िनेटली आई गो देयर आई गो देयर। जी मैम। अभी आपसे, आपका सर्विसेज के लिए कोई सामने आए, आपसे संपर्क करना चाहेंगे आपकी जी। सर्विसेज को हाँ लेके, जी, कुछ सुझाव उनको चाहिए उनकी जिंदगी जी, में विद रिगार्ड टू देयर मेंटल हेल्थ, तो यस। आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? आपका सर्विसेज कैसे पा सकते हैं? लेकिन ज़ूम में हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं ना? तो हम उनसे जैसे मैं अपनी प्रोफ़ाइल बना के मैं डाल दूँगी, उससे वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। अपने बारे में जैसे कोई प्रोफ़ाइल वो शेयर कर दें, जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं ऑनलाइन उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। बिफोर वी एंड और 1 2 मिनट बात करेंगे। यस मैम, अभी अभी वो क्वेश्चन हमारे मन में आया है। तो ये बात क्या है ना, अगर एक इंसान आपको तकलीफ या चोट पहुंचाते हैं, बिल्कुल। बाकी सभी लोग अच्छे ही हैं आपके साथ, तो वो हुँ, एक इंसान के लिए तो आप क्यों अपना जान लेना चाहोगे? हाँ, ये भी एक बात है ना, तो मेरे को बहुत अगेन वही बोलती बेटर है। है ना। देखिए, अगर मतलब देखा हमने पहले एक आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपने वो एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक कपल है जिसमें उसकी सिस्टर है कि उसे पढ़ना नहीं देना चाहती ताकि उसे अवेयरनेस हो बाहर की सोसाइटी की। तो वो सिस्टर की वजह से अपने हस्बैंड से रिलेशन खराब करके जाना या डिवोर्स करना, वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे लगता है गलत है। आप एक पर्सन की वजह से अपना रिलेशन खराब क्यों करेंगे?
मैटर नहीं करता, उस एक पर्सन को हमें इतनी इम्पोर्टेंस ही देनी क्यों है? जी, जी। सबसे प्रायोरिटी हम हैं अपने लिए और हमारे जो स्पेशल रिलेशंस हैं वो हैं। उससे ज़्यादा तो हमारे लिए कुछ मैटर भी नहीं करता। तो एक ऐसे थर्ड पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना वो चीज़ गलत है और उस चीज़ के लिए हमें खुद को सफ़र करना, खुद को हर्ट करना, खुद की जान लेना वो बहुत गलत माना जाएगा। जी, जी। जी, मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very धन्य much. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, dear. So, dear friends, don't give up on your life. Face life bravely. Meet the right kind of people in your life, or the right kind of people will help you. If one person, two or two people, or maybe one or two people hurt you, or three people, or maybe 10 people will hurt you, but there are hundreds of people who are there to support you. So don't lose your hope. Don't lose your lives just because someone has treated you badly. You deserve to be loved by the right kind of people. With this, we'd like to sign off, dear friends. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Take care of your mental health. Take care of the health of your family members also. It's not only you, it's your family members as well who deserve your attention, love, and care. With this, we'd like to sign off now. Stay connected and stay blessed. My dear friends, with this, we'd like to come to an end to the International Fab Talks for today. If you like what the International Fab Talk team is doing, connecting with the right kind of people, requesting them to share their time, asking them questions regarding life, regarding our thoughts and views, regarding how one should live in the right way, how one should be able to face life, how not to give up on life and all its challenges. If you like what the International Fab Talk team is doing, do stay connected with us, dear friends. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Please prioritize your mental health. Love your parents, love your family members. And of course, don't forget to protect the environment as well. Stay connected and stay blessed.